Good morning, everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning. Thanks. Uh, so, guys, quickly on this FMCG today, there's a lot of things about FMCG. Many of you have sent me this FMCG news, but you know what? I would like to highlight things that we were talking on Tata Consumers and the overall FMCG sector. Now, अगर ये तुम न्यूज़ बराबर से पढ़ते हो, this is on the Business Standard first page पे ही था. Food companies saw a margin squeeze in Q1, expect a reprieve with this quarter. Means, see now the margin was declined due to higher material costs. We know that all the prices were up, and that is why the margins have been decreased. HUL has also mentioned that because of the higher spend, then margins have decreased. Now, if you see over here, I was reading this article. While it take time for them to benefit from the lower raw material cost, analysts expect this to start showing from July September quarter. Now, what we were talking about crude oil decreasing, palm oil prices decreasing, inflation at lifetime low. So all these things probably will reflect in this quarter. That is, ये September का quarter है वो July to September, because last quarter we saw that there's a decrease, but now it will impact in this quarter. Further, now when we talk about the tea and coffee prices, which was the concern, so the Tata consumers have passed on only 70% of the tea inflation this quarter. 50% was done in Q4. Okay, which continued to the pressure on. So that is why the margins have been declined. So margins were also impacted by non-branded business. So the current tea prices are down 9 to 12% year on year. We expect Q2 July to see partial benefits, and Q3 October to December to see the full benefits of lower pricing, landing to sharp margin improvements provided that there are no new price cuts from the unorganized players. Now when you make your financial models, okay, तो हमको पता है कि Q3 में उसके margins will start improving. Don't assume when you make a financial model. इसके लिए वो quarterly numbers important होते हैं तुम्हारे models में. We talk about historical rate. We take an historical average and take it in the next year. ऐसा नहीं होता. That is why quarterly analysis is very important. So we expect अभी कितना होगा क्या होगा, we cannot expect it, but at least we have to increase it from the previous quarter. So this is how it works. And अभी इस पे ना Q1Q इस पे we have to look at year on year only, because this is a specifically commodity type of business, raw material cost. So we cannot see कि Q1 last year इतना था अभी इतना है. So when you talk about this cost, obviously we have to talk only about QN on a Q1Q basis. So that is what helps you. एक न्यूज उसके लिए पढ़ने होते हैं कि तुमको पता है कि तुमको फोकस क्या करना. And ये prices हम, since we were reading it from a daily basis that the prices have declined, raw material cost have declined, it is decreasing, palm oil decrease हुआ है, फिर उसके बाद ठीक है coffee and tea prices have increased. अभी coffee के बारे में उसने specifically लिखा नहीं है कहाँ पे, but if you Google it, you will also find हाँ यहाँ पे लिखा ही है वैसे तो. However, notice a stabilizing edible and cocoa, a declining trend in coffee and stabilizing modest and increasing of price of milk. So coffee prices have also declined, started declining. अच्छा, now yesterday my wife ordered Nescafe का वो कॉफी. उसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं 180 में आने के अभी 220 में आ गए. ओके, नेस्कैफे के. नाउ तुमको लगता है अभी ये वापस Q3 में नेस्ले इसका प्राइस कम करेगा? यू थिंक? No, sir. मैंने यहाँ पे बोला ना कि प्राइस दे हैव पास्ड ऑन 70% ऑफ द प्राइस हाइक. डू यू थिंक अभी कॉस्ट कम होगा तो दे विल डिक्रीज द कॉस्ट? ऐसा कभी हुआ है कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट कभी कम हुई है नो स्पेसिफिक? सर, उनके या तो अमाउंट कम कर देते हैं सेम प्राइस में, या फिर वही प्राइस अगर एक बार इंक्रीज हो गया तो वो डिक्रीज नहीं करते. जनरली तो नहीं करते हैं सर, 99% चांसेस. नहीं करते. ज्यादा से ज्यादा दे माइट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इट, बट वो भी बहुत रेयर होता है कि दे इंक्रीज द क्वांटिटी. प्राइस हाइक हुआ है तो प्रॉब्ली दे विल कीप इट एट द सेम, बिकॉज इन्फ्लेशन है. हमको आदत हो जाती है वही प्राइस पे. पेट्रोल की प्राइस आज तक कभी कम हुई है? हाँ, 50 से 100 से 120 होगी और फिर 120 से 110 करेंगे, but it will never decrease to below 100. So this is how this FMCG works. So now अभी यहाँ पे रेपो रेट कट की भी बात कर रहे थे. There was some news about repo rate. They are expecting that there won't be any repo rate cut this season. So probably demand is intact, and
to talk about that FMCG. It was in the Financial Express. FMCG turns the corner as the urban demand looks up. Now, Sanchit, you have written about urban demand. Na? Would you like to say? Sanchit? Yes, sir. Actually, sir, I am not totally related to urban rural, but before it, that actually today I am highlighting that the performance FMCG company in Q1 financial 26 was impacted by erratic weather and unseasonal rainfall. And unseasonal rainfall during the weak summer month affected the performance summer centric FMCG categories such as beverages and glucose. And Dabur India reported that unseasonal rainfall affected its glucose category, which declined by 4.4% during the quarter. And Tata Consumer noted that due to unseasonal rainfall, its ready-to-drink segment posted modest 7% growth on an aggregated basis. And HUL also stated that early monsoon had a negative impact on ice cream. And overall, the early monsoon affected the summer portfolio across companies. Categories such as juices, soft drinks, bottled water, ice creams, and cooling hair oils. And despite the challenges, FMCG companies observe sustained and gradual recovery in urban demand, and market sentiment within the FMCG sector has shown a sign of improvement over the past few months. संचेत, see, we are not reading Yes, over. sir. तुमने जो लिखा है वो तो एक तो तुमने ऐसा लिखा है ना तुम when I ask you you have written this प्रेजेंट करना मतलब बोलना रीड करना नहीं होता है रीड ही करना है तो फिर मैं तुमको क्यों हायर करूं मैं रीड कर ही सकता हूँ ना अगर मुझे चीज रीड ही करनी थी why would I pay 10-15 lakhs to you? I just asked क्या हुआ है when the demand increased क्या हुआ है डिमांड में तुम रीड कर रहे हो सब के सब पहले तो मैंने बोला था तुमको हेडिंग लिखना है इधर हेडिंग कहाँ पे है तुम्हारी So जो फर्स्ट लाइन है वो सर वो सर व्हाट्सएप फर्स्ट लाइन हेडिंग है. और बाकी इतने बड़े पैराग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करने वाले तुम पढ़ के इतना सब कुछ लिखा है तुमने हाउ आर यू गोना एक्सप्लेन इट फाइन FMCG was impacted due to erratic weather patterns and unseasonal rainfall उससे क्या हुआ So due to this, the summer portfolio of the FMCG companies affected, mostly the beverages, glucose. तो In वो Dabur हेडिंग India, होना चाहिए ना the तो वो हेडिंग होना चाहिए ना इरेटिक रेनफॉल मुझे भी पता है मेरे इधर रेनफॉल नहीं गिरा है अफेक्टेड परफॉर्मेंस मतलब क्या परफॉर्मेंस मतलब क्या अफेक्ट हुआ FMCG मतलब क्या मैंने चाय पीना कम कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय जो उनका जो समर पोर्टफोलियो है उसका डिक्लाइन हुआ है सर. तो वो लिखना चाहिए ना हेडिंग तुम्हारा समर पोर्टफोलियो में क्या आता है मुझे नहीं पता क्या आता है समर सर पोर्टफोलियो जिस तो दिस शुड जिस बी लाइक हेडिंग ना रेडी टू जैसे सर Summer मैंने portfolio, summer portfolio, which includes beverages and glucose, uh, was affected due to erratic weather patterns and unseasonal rainfall. तुम बोल रहे हो पूरा FMCG मतलब मैं बोल रहा हूँ FMCG में तो ये भी आता है तुम्हारे शू फुटवेयर भी आता है वो भी डिक्लाइन हो गए FMCG में बिस्किट्स भी आते हैं FMCG में फूड्स भी आते हैं उसका रेनफॉल का क्या लेना देना ज्यादा बारिश गिरे तो चाय पीना बंद कर दिया तुमने इज इट देन सी दैट्स व्हाई आई सेड वी डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू रीड इट तुमने अगर ये लिखा है पहली बात तो लिखा बराबर लिखा अच्छा है बट अभी तुम प्रेजेंट कैसे करोगे ये आधी चीजें इधर उधर लिखी है सब लिख दिया जो भी है वो इतना ही अगर मुझे बड़ा पढ़ना था तो मैं न्यूज़पेपर ना पढूं तुम्हारा आर्टिकल क्यों पढूं मैं वुड आई विल आई रीड एन आर्टिकल ऑफ अ फ्रेशर और मैं एक्सपीरियंस वाले का आर्टिकल पढ़ूंगा तुमको अगर मुझे इतना बड़ा पढ़वाना ही है तो मैं तुम्हारा पढ़ूंगा क्या मैं इट विल टेक मोर देन 1 minute टू रीड एंड उसमें से मुझे मुझे
क्या मिलेगा पता ही नहीं मुझे. I will rather prefer to read a article of a journalist. बता क्या. आई हैव टोल्ड यू ना, व्हेन यू स्पीक इन अ प्रॉपर वे, तुम्हारा हेडिंग से पूरा पूरा आर्टिकल लिंक होना चाहिए, विच इज नॉट, लिंक हो ही नहीं रहा है. सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ हो गया, डिक्लाइन हो गया, क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा हो गया. तो क्या हुआ, बारिश ज्यादा हुआ तो? बिकॉज वेन यू आर स्पीकिंग इट ना, किसी को कुछ नहीं समझा तुमने क्या बात की, मुझे नहीं समझा, बाकी तो छोड़ ही दो कि क्या बाकी लोग को कुछ समझा होगा. सी अदर्स आर ऑल्सो फ्रेशर्स टू यू. वो लोग वो लोग ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये न्यूज. If you are not able to present them in a proper way, then what is the point of writing the news? पहले मैं बोलता ना कि कॉल पे आया करो. यू डोंट कम ऑन टू द कॉल ऑन अ डेली बेसिस. जो तुम लिखते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम पढ़ते हो, लिखते हो और बोलते हो, बहुत फर्क है तीनों में. वापस बोलो क्या हुआ है एफएमसीजी में. मुझे सिर्फ हिंदी में बताओ क्या हुआ है. इरेटिक वेब से क्या हो गया है? ठीक है, समर पोर्टफोलियो इम्पैक्ट हुआ है, फिर उससे क्या डेटा पॉइंट मिले उनको तुमको? उसमें जो एफएमसीजी कंपनी है, उनका जो समर का जो पोर्टफोलियोज है, जो जसली जो बेवरेज ग्लूकोज कंटेंट करता है, इन डावर में ऐसा हुआ है कि उनका जो ग्लूकोज का जो कैटेगरी था वो डिक्लाइन हुआ है बाई 4.4% ड्यूरिंग द क्वार्टर. ड्यूरिंग द क्वार्टर. अभी तुम ये अगर 4 महीने बाद न्यूज पढ़ोगे, ड्यूरिंग द क्वार्टर मतलब कौन सा क्वार्टर? Q1, Q5, Q4, कौन सा क्वार्टर? Q1 FY 26. कौन लिखेगा? Dabur India reported that unseasonal rainfall impacted their performance in glucose category. Already तुमने लिखा है ना. अनसीजनल रेनफॉल तो उससे क्या हुआ? अनसीजनल रेनफॉल के वजह से मतलब तुम चैट जीपीटी का इतना गलत यूज करते हो. है तुमको दिया है ऑप्शन, फिर भी यू आर यूजिंग इट वेरी रॉन्ग. कि बस तुमने वो चैट जीपीटी पे डाल दिया है वो सब लिखा है. तुमने लिखा ही नहीं है, चैट जीपीटी ने लिखा है. आई कैन मेक आउट. तुम इतना दिमाग लगा के लिख ही नहीं सकते. बिकॉज जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो, तुमको प्रेजेंट करने ही नहीं आ रहा है. इसके वजह से क्या हुआ है? इसके वजह से डाबर इंडियाज परफॉर्मेंस इन ग्लूकोज कैटेगरी विटनेस अ 4.4% डिक्लाइन. इतना ही एक लाइन है सिर्फ. टाटा कंज्यूमर्स में क्या हुआ है? वापस, टाटा कंज्यूमर नोटेड द इरेटिक वेदर कंडीशन अफेक्टेड रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट. सब लिखा ही है ना तुमने, इरेटिक हुआ है. उससे क्या हुआ टाटा कंज्यूमर्स को? विच 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 पोस्टेड अ मॉडेस्ट 7% ग्रोथ. मतलब इफ यू आर टेलिंग मी टू राइट ऑल दोज थिंग्स इज वेरी रॉन्ग है ना. ऐसा सब करोगे तो इंटरव्यूज में दे विल नॉट इवन कंसिडर योर रिपोर्ट. कितना सब पढ़वा रहे हो. दैट इज आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली कि जितना लिखना है हमेशा इट शुड बी वेरी वेरी लेस. जितना बात करो उतना ही बोलना चाहिए, जितना तुमको याद रहे. इफ यू आर राइटिंग इट मोर देन व्हाट यू आर स्पीकिंग, so there will be a problem, huge problem. You have also written the same thing. You can catch. Sorry, he's not there on the call. Okay, fine. Satyajit, tell me your news. हेलो. हेलो. 1 second, सॉरी. शुभम ने भी लिखा है. शुभम तुम बोलो ना. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Sir, today the news was related to FMCG industry, which gains the momentum with the urban demand. So the reason behind this urban demand improving due to the favorable macroeconomic fundamentals, lower food inflation, and monetary and fiscal policy measures. Sir, if I talk about the volume growth of FMCG, which grew by 3.5% year on year in Q1 financial year 26, and where household care grew by 4.3% Q1 FY 26, followed by personal care 4.2%, and food and beverages grew by 3.2% due to sir rain in Q1 financial year 26, with which affected ready to drink and other foods. The food business. Okay. And
Sir, if I talk about the company performance, which reflects the mixed trends, like HUL volume growth increased by 4% year-on-year growth in Q1 FY26. So Nestle revenue increased by 6% year-on-year, but sir, at the same time, 13.4% decline in Q1 FY26 profit. So the reason behind this decline was due to elevated in raw material and operational cost, financing cost, and reduced non-operating income. And sir, if I talk अच्छा, about ये the ऐसे बोलते हैं, IT, ये बोलते वक्त ना ऐसा बोलते हैं, ऑपरेशनल, Mhm. सॉरी, ड्यू टू एलिवेटेड रॉ मटेरियल, ऑपरेशनल, ऐसा, Operational and financing cost. ऑपरेशनल एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है, इज बेटर, Yes. ठीक है. Yes, sir. And if I talk about the ITC revenue, which is also grew from non-cigarette FMCG segment by 5.5% year-on-year in Q1 FY26. So if I talk about the conclusion part, we are seeing that the positive demand outlook in the urban demand likely to stay strong, especially in the essential categories like home and personal care, and expected that continued recovery in rural demand if the inflation remain low and rural income rise. And FMCG players may focus more on cost management in premium product segments, which especially improve their revenue and PAT. That, okay. FMCG players to focus more on cost management, premium product and rural Rural expansion. expansion. Yes, sir. Okay. अच्छा, तो ये न्यूज़ को ना तुम वो इससे भी कनेक्ट कर सकते हो जो मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में हाँ अबाउट, हाँ हाँ सर. हाँ, तो उसमें यू कैन Yes. गेट मोर डिटेल्स अबाउट ना कि नेस्ले में क्या हुआ है स्पेसिफिक, हाँ हाँ हाँ. Specifically, yes, HUL sir. में Yes. क्या हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे दिया टाटा कंज्यूमर्स में क्या हुआ है एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड. तो ये हाँ न्यूज़, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे तुमने बोला यहाँ पे भी वही लिखा है कि क्या हुआ है रॉ हाँ मटेरियल, हाँ. तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स दिया है कि रॉ मटेरियल प्राइस Yes, कम sir. Yes, हुआ, sir. तो हाँ मार्जिन हाँ. कितने से कम हुआ. हाँ सर, ये न्यूज़ ना मैंने उससे पढ़ा, वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अभी आपने वो जो एक आर्टिकल ओपन किया था ना, हाँ उसी में था, तो उसी से हाँ फिर मैंने थोड़ा और डिटेल में इसको देखा, तो फिर बाकी का जैसे हाउस होल्ड केयर वगैरह उसमें लिखा हुआ था, फिर बाकी का थोड़ा बहुत डिटेल देखा कि इससे क्या अफेक्ट हो सकता है, तो फिर ये मैंने और डिटेल में हाँ. थोड़ा सा किया. तो कल वो ये भी तो न्यूज़. इसमें वो लिंक हो रहा है वो न्यूज़ जो हम हाँ बात, हाँ हाँ हाँ, हाँ. वो सब सब यस सर. न्यूज़पेपर में अलग अलग आया है. हाँ हाँ. यस सर. यस एक सर. बिजनेस लाइन में भी आया है, बिजनेस लाइन में भी यहाँ पे आया अनसीजनल रेंट. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली रेडी टू ड्रिंक के बिजनेस की बात की, वो ठीक है, वो तुमने लिखा हाँ था. हाँ हाँ यहाँ हाँ. पे टाटा कंज्यूमर्स की अभी, इफ आई गाइस, इफ आई टॉक अबाउट ऑल द थ्री आर्टिकल्स, टाटा कंज्यूमर्स का नाम कॉमन आ रहा है सब में. सब में. यस सर. यस सर. सब में टाटा कंज्यूमर्स इज कॉमन. HUL तो है ही, बिकॉज HUL इज अ मार्केट लीडर, बट द सेकेंड पार्ट इज ये टाटा कंज्यूमर्स का ना मेजरली सब में आ रहा है, क्योंकि टी एंड कॉफी आर द मेजर डेरेंट फॉर टाटा कंज्यूमर्स, एंड टाटा यस कंज्यूमर्स सर. के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं. हम्म. उनका सिर्फ प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद, डिस्पाइट द प्राइस इंक्रीज इन टी एंड कॉफी, दे मतलब इम्प्रूव्ड देयर या रेवेन्यू. यस सर. रेवेन्यू एंड वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो गया. हाँ हाँ. मतलब कह सकते हैं सर कि प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी उन्होंने बहुत अच्छा बैलेंस किया एफएमसीजी के लिए, मतलब स्पेशली टी कॉफी के लिए. करेक्ट करेक्ट. वो नॉन ब्रांडेड बिजनेस में देयर इज अ प्रॉब्लम, बट ओवरऑल. तो ब्रांडेड वैसे भी सर हम लोग जब देखते हैं तो वही है ना सर कि ब्रांडेड की तरफ ही फोकस है, और स्पेशली अभी फोकस है, प्रीमाइजेशन तो हम देख ही रहे हैं, तो सर ब्रांडेड की तरफ ही लोग जाते हैं स्पेशली. तो करेक्ट हम फोकस करते हैं कि ब्रांडेड ही ले, तो इसलिए उनका इम्प्रूवमेंट भी उसी में दिख रहा है सर. करेक्ट है. स्टारबक्स में आजकल दिखते हैं लोग ज्यादा. हम्म. ओके. नाउ नाउ आई वाज, वही मैं बात कर रहा था मेरे वाइफ से, उसने नेस्कैफे का बोला कि अरे प्राइस बढ़ गया है बहुत ज्यादा. तो मैंने ऐसे बोला, अरे टाटा कंज्यूमर्स का ले ले, हम शेयर होल्डर्स है उसके. टाटा कंज्यूमर्स का बाय कर. बोलते नहीं, मेरे को टाटा का कॉफी अच्छा नहीं लगता. मैंने ट्राई तो कर, वैसे ही महंगा हो गया इतना. टाटा का ना ओवरऑल वो टाटा कॉफी सस्ता आता है कंपेरेटिव नेस्कैफे, क्योंकि नेस्कैफे इज अ प्रीमियम ब्रांड. टाटा का भी है, टाटा का टेटले है. आई वेंट टू अ ना रेस्टोरेंट, वहाँ पे टेटले के टी पैक्स थे, वो रेडी टू ड्रिंक वाले ना. तुम वो पानी में डालो एंड दूध विद की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑलरेडी सब मिक्स होता है. टेस्ट बहुत खराब आता है बट चल जाता है ना व्हेन यू गो आउट. सो वी वर मैं एक वीकेंड को बाहर था, सो एक ओवरनाइट में गया था एक होटल में, तो वहाँ पे वो थे टेटले के सब. तो दो होटल्स में मैंने देखा है कि टेटले के होते हैं. यूजुअली यू डोंट फाइंड इट इन द ग्रोसरी स्टोर ज्यादा, बड़ी होटल्स में मैंने काफी नोटिस किया है. वो पता है व्हेन यू गो फॉर अ ओवरनाइट ट्रिप, वहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री टी और कॉफी होता है जो टेबल पे होते हैं,
तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे टेटले था, पहले नहीं करने का बट उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया। ओके, तुम जाओगे कभी तो ऑब्जर्व करना कि अगर कभी गए ओवरनाइट रहने को तो वो जो होटल्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफी होते हैं, जस्ट जस्ट सी क्या है, पहले नेस्कैफे के होने के। सर तो टेटले भी तो मतलब टाटा के प्रीमियम प्रोडक्ट में ही आते हैं हाँ ना, तो हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस- दिखने लग गए अभी ऐसा। टाटा कॉफी सस्ता आता है हाँ, अच्छा अच्छा। नेस्कैफे वो में, कंपेयर टू नेस्कैफे टाटा कॉफी सस्ता है, मतलब जो मास मतलब सेगमेंट टेटले वाला है। टेटले टेटले भी मतलब एज कम्पेयर टू नेस्कैफे मतलब थोड़ा सा सस्ता आता है। टेटले तो वो अलग ही हो गया Tetley's ना, वो tea रेडी है। टू ड्रिंक हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा वो अच्छा। मतलब वो कॉफी कॉफी नहीं होता है, टेटले का पाउडर होता है। वो तुम अच्छा, ना वो कॉफी में डालो, पानी में डालो और अपने आप वो कॉफी बन जाता है, ऐसा है। ओके। टेटले का स्पेसिफिकली वो टी लीव्स नहीं आते, जैसे हम जो चाय बनते हैं ना घर पे, वैसे नहीं आता है। अच्छा अच्छा। ओके सत्यजीत, your news? Yes, sir. हाँ। So, sir, I would like to present about Hyundai's result and this quarter numbers, sir. So, in Q1 FY 26, Hyundai SUVs has dominated with 71% of shares by like numbers of shares of the what you say product has been sold was SUV, and export has been surged around 13% Y on Y. But volume has been down 6%. A strong SUV dominance was because of multiple price point. Like they have like good portfolio like Creta, Venue, Alcazar, and which is attracting a wide customer base. And rising, we know as per rising customer preference is right now SUVs. And export have increased because they have increased their destinations, sir. Right now they're exporting around more than 50 countries. It was showing in their con calls. And rural sales has been climbed to 22% of the volume, and this which is a 270 basis point jump year on year. And because of favorable monsoon, higher MSP, and best thing is rural infrastructure, which is supporting SUV demand in rural. And overall, in this quarter result, they have reclaimed their second spot by overtaking M&M, which by gaining 30 basis point market share. And overall revenue was down by 1.5%, and domestic revenue also was down 10.2% Y and Y, because as we know, low consumer demand and very few launches. They didn't launch apart from Creta anything in last 1 year properly. And so the last thing is what I got from con calls, that they are expecting second half of their year to be recovered, because they are launching 26 new models by 2030, and 8 models in next 2 years. And in second part, we have a they are expecting a good festive season, and 100 basis point rate cut, and income tax relief, which are the and 8th commission rollout. So these are the headwinds for them for the second half to recover, sir. ये 8 मॉडल्स अलग ने बोला है क्या, क्या बना रहे 8 मॉडल्स इन द नेक्स्ट, मतलब कौन से 8 models एसयूवी? they are launched next 2 years, sir. हाँ Con बट नहीं, calls कौन में सा है बोला एसयूवी के बोला है या mostly नहीं बोला? SUV, sir. Like they were focusing on SUV and ruler. And one more data point was there, sir. But like I didn't mention in this because this article, eighth pay commission, out of which, sir, government employee are 67% contribute in their sales, sir. ओके ओके, 67% कंट्रीब्यूट। हाँ सर, आई हैव सेंट यू द कॉन कॉल्स, अपने तरफ से हाँ लिखा भी हाँ था मैंने, तो एक पीडीएफ आपको ट्राई किया था, तो हाँ। उसमें था वो डिटेल। इसमें लंबा हो जाता ज्यादा, तो नहीं मैं बोलना चाहा, मैं अच्छा सोचा वो बोल के बताऊं। हाँ ओके। और ये तुमने नहीं बोला इट ओवर टू एमएनएम ना, वापस टू सर, रिक्लेम? हाँ सर, लिखा हूँ, बोला भी था, लिखा ओवर था, टू अच्छा बोल कैम रहा सेकंड है। स्पॉट, या सर। ओके, तो वो ना, वो ऐसा तुमको जब बोलते हो ना तो यू शुड हाईलाइट इट, कि समझना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिग न्यूज़ ना। थोड़ा सा लिखा, हाँ, यू हैव अंडरस्टूड टू सर। हाईलाइट इट कि भी सर, थोड़ा सा तेज, हाँ, क्योंकि तुमने उस बोला पर मेरे जोर ध्यान डाल। में नहीं था कि तुमने बोला करके, अभी लिखा मतलब। हाँ सर, एक ही टोन में सारा बोल दिया, ठीक हाँ, है। क्योंकि वो तुम, हाँ चलिए। एक सेंस में बोलते हो ना तो वो क्या है कि ध्यान नहीं होता है, तो व्हेन यू हम्म स्टॉप हम्म एट 10 व्हेन यू से ना तो वो ध्यान में आता है, अरे यार
it reclaimed the second spot again. That's a sir. good thing. Sir. Yes, sir. Share price also from past 2 months has been increased like more than M&M, sir. Like people are lots of optimistic about Hyundai right now Okay. because of their ruler, sir. Because even if they're expanding 10 outlets, 7 of them are in ruler, sir. That also I have provided in second when ruler that out of 10 outlets, 7 is in ruler, sir. So they're like very much of optimistic in ruler, and they are mostly SUVs. So no, like everybody is looking forward to it. No infrastructure things are coming into it. And ruler share is around 22%, huh? 22 से आ रहा है. Sir. New outlets also they are increasing. So mostly they are opening in rural sector. So 7 around 10 if they are opening, 7 is in rural. Oh, okay. इतना डिमांड आ रहा है रूलर से. हाँ वही बोल रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया सर वो लोग यही सब चीजें कौन लोग बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सपोर्टिव है एंड दे वर आल्सो सरप्राइज दैट दिस मच ऑफ डिमांड इज कमिंग because their price points, the Creta is coming into from a very good price point and giving lots of like sunroof. Their हाँ. sunroof part has been increased by 70%, and still they are saying that they have room to grow because in Venue, Alcazar, still they have not introduced sunroof. So if they introduce sunroof in these also pick up. They were saying. Okay. 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 So Siddharth, anything on your article, Siddharth? तुमने जो लिखा था, Siddharth has made a good report on ऑटोमोबाइल सेक्टर. ये जुलाई का जो नंबर्स आया है उस पे. सिद्धार्थ, Yes, sir. हाँ, So should I present from starting, sir? हाइलाइट्स प्रेजेंट करो. Yeah. जिस Yeah. प्रेजेंट हाइलाइट की इंडस्ट्री में क्या हुआ है. Yes, sure, sir. So let me start with good evening, everyone. So let's start with the industry overview. So Indian automobile sector grew by almost 13.1% year on year to 2.24 million units in July सिद्धार्थ, 25. नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है ना. Okay, sir. सिर्फ परसेंटेज बोलो. Okay, मैं percentage बोल के आगे. 60%. हाँ. So this growth was mainly powered by two-wheeler and three-wheeler segment, which robust gain of 14.8% and 29.6% respectively. Whereas four-wheeler segment grew modestly, driven by export, which has given the surge of 30%, offsetting a slight dip in domestic demand. Overall, rural demand, export focus, shifting towards premium products and electric vehicles continue to save the market landscape. अच्छा, तो So अभी now, so the question is why is domestic increasing and ये decline क्यों हुआ है. एक में लिखा है किधर तो, बट हाँ, what is it, why is export increasing. Sir, basically, sir, domestic demand is increasing in the because of premium sector. Means hatchback and sedans are demands are not growing that much, but SUVs are increasing because of the premium demand. And also, major impact for growing four-wheeler segment is because of export and EV sector. I mean, export is increasing on a normal basis also, and EVs are also giving a good. If you will see in the left-hand side of the chart, in the four-wheeler, export and EVs are the major key indicators that are providing the strength to this four-wheeler segment. SUVs have declined, but Yes, ये sir. कहाँ से मिला From तुमको डेटा, ये डेटा कहाँ से मिला. sir, press release, sir. पर प्रेस रिलीज में हुंडई का एसयूवीज का डेटा नहीं मिलता है. हुंडई का सर मतलब मैंने हुंडई का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार ले लिया था, मगर मेजरली जो था वो मिल गया था मेरे को. अच्छा, ओके. ओके. मंथ ऑन मंथ सर वो राइज कर रहा है. अगर आप देखोगे फोर व्हीलर इसमें यहाँ पे मैंने फोर व्हीलर का चार्ट लगाया था डोमेस्टिक का, उसमें मंथ ऑन मंथ इट इज इंक्रीजिंग, बट लास्ट ईयर जुलाई में काफी ज्यादा सेल हो गया था, तो उस कंपैरिजन में इट हैज हाई रिड्यूस्ड. बेस इफेक्ट की वजह से शो कर रहा है सर लास्ट. हाँ. यस सर. Okay, yeah, go ahead. So in the four-wheeler segment, let's discuss about some companies like Maruti Suzuki has given a modest growth of 13.2% year on year, and majorly it was that I earlier said due to export, which has given a rise of 32%, and the major impact was in Maruti Suzuki was because of domestic segment has given a downside of 1.5% year on year, and also the majorly it was driven by sedan has not performing
good in the Maruti Suzuki. Sedan and hatchbacks and SUV, all threes are not given a good uh, performance as compared to year on year. But in तो यहाँ पे ना यू कैन वो एक डेसिमल डाल सकते हो कि जीरो दिख रहा है ना, वरना mhm. मिलियंस में ना ये नंबर्स, No sir, मिलियंस में, thousands. थाउजेंड्स, ये थाउजेंड में, Yes, ओके। तो वहाँ पे फिर एक पॉइंट एक डेसिमल डाल सकते हो थाउजेंड में, तो ठीक है, क्योंकि जीरो दिखना, जीरो लगता है कि कुछ भी नहीं है ना। okay, sir. It's only 173 units, sir, in July हाँ, 25. It's mentioned in the paragraph. ओके, ओके। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा ना चार्ट में, मतलब जीरो Yes, मतलब sir. क्या हो गया है, ऐसा, Okay, ठीक है, ओके। okay, sir. Then next company I would like to discuss are Mahindra. Mahindra, that's it's booming. Means as mentioned in the earlier news by Satyajit that it has come to the second point in the last month in its first in the first quarter end, and it has shown a huge growth of 21% year on year, driven by staggering EV sales by 1452% surge and growing SUV portfolio aligning with premiumization trends. Its export has also witnessed a significant increase of 147%, underscoring a successful strategy in both domestic, premium, and international markets. If here we see in the graph, export has exactly goes a little bit down. हाँ, एक second. In Mahindra and Mahindra, in the graph, we will see EV has performed very well in the July 25 month as compared to last June 24. It has given a growth of 1452%, and export has also given a huge increment of 147% year on year. SUVs भी इंक्रीज हुआ है ना। Yes. And now let's discuss about the two-wheeler segment. In two-wheeler segment, the industry has expanded to 14.8% year on year, and it was largely due to strong rural demand, favorable monsoon effect, and the upcoming festive season buying. And other than domestic, export has also rose by 34.3% year on year. Okay, exports भी And increase. yes, sir. Means overall, sir, automobile, you say automobile or anything else. आज मैंने एक न्यूज भी पढ़ रहा था about mobile sector. Exports are booming in every sector, Every sector, yes, every segment. every segment. Yes. And when it comes to the companies of the two-wheeler, Honda become the largest domestic player in two-wheeler market, surpassing Hero MotoCorp with commanding 30% market share in July 25 from 25% market share that was in June 25, posting around 20% month-on-month jump to quantity 515,000 units. And the drastic improvement of Honda sales is due to demand of scooter is rising, and the major sales of Honda is driven by the scooter segment, which is 48% of its total volume sales. More and more to boost motorcycle segment, Honda have launched CV125 Hornet and Sign 100 DX, targeting towards rural and festive demands. As motorcycles are not doing that great, so to cover up, they have launched these two models, and as we are know that scooter segment is growing day by day, so they are also focusing on that. And अच्छा, now तो comes यहाँ पे सिद्धांत, यहाँ पे ना तो मोटरसाइकिल्स, यहाँ पे इसको भी और डिवाइड करके मोटरसाइकिल स्कूटर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज टू व्हीलर में क्या बढ़ रहा है, Mhm. ठीक है, Sir, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स में basically, भी बढ़ रहा है, अभी एक्सपोर्ट में प्रॉब्ली ऐसा नंबर्स नहीं आएगा डोमेस्टिक, बट ओवरऑल मोटरसाइकिल्स बढ़ रहा है या स्कूटर्स बढ़ रहा है, वो भी यहाँ पे इसके नीचे कर सकते हो, but टोटल हो उसका गया ये। डेटा मिला नहीं था मेरे को इसका हमारे मोटरसाइकिल और एक्चुअली। स्कूटर्स का है ना डेटा इसमें, वो प्रेस रिलीज। होंडा का सर प्रेस रिलीज नहीं आता ना, हाँ, होंडा का नहीं आएगा, हाँ, इसीलिए तो होंडा का मैंने नहीं ये आएगा। नॉर्मल थर्ड सर पार्टी गूगल सर से अभी खोजा प्रेस था। रिलीज पे करा ना, ऑटो पंडिट्स में आएगा तब वो डिटेल में आ हाँ, वो तब पाएगा। नहीं, अभी ये हाँ। प्रेस रिलीज की बात कर रहा था, तो प्रेस रिलीज में ना बेसिकली सिद्धांत प्रोबेबली टेक तुम्हारे प्रेस रिलीज के नंबर जो भी कंपनी लिस्टेड है ना, होंडा का नहीं लिया तो भी चल जाएगा, या होंडा टीवीएस का का इससे मिल जाएगा। बड़ा नंबर ले लिया तो भी चल जाएगा, ऐसा है। Okay, sir. Now let's discuss about the Hero MotoCorp.
that came to the second player, I mean, second dominant player in the two-wheeler industry, which has shown a volume growth of 21%, 21.5% year on year, supported by sharp scooter sales of 64% rise. But in month-on-month basis, there is a decrease in the demand in two-wheeler just because of motorcycle demand is reducing, and slightly is compensated by scooter, as Hero MotoCorp majorly its volume is sold to towards, if you will see in the graph, it's almost 90% their portfolio is of motorcycles. And as motorcycles demands are reducing, so the monthly domestic demand is also reducing. But it is ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, मंथली डिक्लाइन हुआ है, ऐसा बोल रहा हूँ. monthly से decline हो रहा है because of some motorcycle. Scooter month on month is also increasing. ओके, मंथ ऑन मंथ नहीं देखते यूजुअली स्कूटर, क्योंकि फेस्टिवल वो सब बहुत मैटर करता ना. जैसे जुलाई में, और तुम जुलाई और अगस्त का कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कि जुलाई में बारिश था, अगस्त में नहीं होता है. ईयर ऑन ईयर ठीक है. ये तुमको ये बोला था कि सर स्कूटर इज इंक्रीजिंग, तो स्कूटर में वाज लेड बाय करेक्ट डेस्टिनी एंड जूम. Destiny and Zoom, yeah, एंड में basically भी विडा. हाँ Vida scooter is performing exceptional in हाँ, the market. इसके काफी आजकल दिखने लग गए शोरूम्स. हाँ सर, नेक्स्ट मंथ्स के नंबर्स देखने लायक होंगे हाँ, विडा के. काफी शोरूम्स दिखने लग गए विडा के. पहले नहीं बास दिखते. इफेक्ट है और न्यू लॉन्च में अच्छा लुक भी है, तो देखना. अच्छा लुक भी है, करेक्ट. डेस्टिनी और जूम, जूम अच्छा दिखता है, डेस्टिनी पता नहीं. जूम इज आल्सो लुक्स गुड, बट Basically सर ये सब डेटा लोग ईवी सेक्टर सर, लाइक ई बाइक नहीं है वो दोनों ना, इसलिए हाँ मैं बोला कि ईवी में देखते हैं क्या बनता है. ये सब सारा डेटा बेसिकली सर वो लोग अपना प्रेस रिलीज में ही प्रोवाइड किए थे हाँ कि कौन सा मार्केट, कौन सा पर्टिकुलर बाइक्स आगे बढ़ रहा है, कौन सा हाँ. ईवी सेक्टर में दे आर ग्रोइंग. अभी तो आ जाएंगे डेटा, तो 15 तारीख तक तो पता चल जाता है क्या है क्या नहीं. यस सर. बट इसका ठीक है, स्कूटर इज अ वेरी स्मॉल. तो मेरा क्वेश्चन था ये कहाँ से हुआ, जो 17% ग्रोथ हुआ है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ रूरल डिमांड. ये सर रूरल डिमांड और अपकमिंग फेस्टिव सीजन्स के कारण ही थोड़ा जो इम्प्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. लास्ट ईयर डिमांड काफी रिड्यूस्ड था मोटरसाइकिल का एज कम्पेयर टू दिस ईयर. ओके ओके ओके. And now let's discuss in short about three-wheeler segment, that it has also growing by 29.6% year on year. Growth drivers majorly includes that monsoon season. Government is also pushing through EV vehicles by FAME and PLI schemes, and improved financing and strong export demand. That has also given an increase of 44% year on year. Companies like Mahindra outperformed with remarkable 163% growth in three-wheeler sales, while industry leaders like TVS and Bajaj Auto is also contributing strongly. This segment remains crucial for last mile transport solutions and rural connectivity, which is strengthened by the policy support and market innovation. In this, majorly I have taken three companies, Bajaj, Mahindra, and TVS, which I got the data from press release of these three companies. So I included these three in the three-wheeler segment. So down section, three-wheeler. And at lastly, I have just consolidated about the domestic sales, export sales of all the companies which are almost combines up to 86 to 90% of the market share in four-wheeler and as well as in two-wheelers. At last, I would like to conclude with, like, Indian automobile industry in July 25 demonstrates strong fundamentals in rural demand, export growth, and accelerating EV adoption. The two-wheeler and three-wheeler segments remain growth engines, while the four-wheeler market experience premiumization and export-led resilience despite domestic softness. Key players like Mahindra and Maruti in four-wheeler and Hero and Honda in two-wheeler exemplify strategic pivots towards electrification, premium models, and global expansion. The growth in electric vehicles and export sales will likely define the next phase of the industry revolution. Thank you. Exports and, sorry, what was the last word? Electric vehicles and exports, sir. Electric vehicle. Yeah, these both are only playing a major role for this two-wheeler and four-wheeler both.
2 व्हीलर एंड 4, सो इफ आई आस्क यू इन 2 व्हीलर्स भी वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है? सर टू व्हीलर पे लोग पीपल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मीन्स मेजरली सर टू व्हीलर में सर वो लोग स्कूटर पे ही फोकस कर रहे हैं, मतलब दे आर बाइंग ऑन अ स्कूटर साइड ही, वहाँ पे ऐसा कुछ मेरे को दिखा नहीं कि दे आर मीन्स गोइंग हाँ, टुवर्ड्स प्रीमियम बाइक्स एंड प्रीमियम स्कूटर्स, बिकॉज ऐसा कोई डिमांड ईचर मोटर्स का भी आया नहीं, ईचर मोटर्स का भी डिमांड इस साल कम ही रहा, उतना बढ़ा नहीं, सुजुकी का डिमांड फिर भी थोड़ा हाई था एज कम्पेयर टू आइसर मोटर्स। ओके। नहीं, मैं क्यों पूछ रहा था क्योंकि ना आज एक टीवीएस ने उनकी एक बाइक लॉन्च की आज, ओके। T110 अपाची, विच इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। कहाँ पे था? ओके। लेट मी फाइंड। वैसे बाइक का डिमांड्स तो गिर ही जा रहा है, लोग फोकस कर रहे हैं तो ईवी में कॉस्ट एफिशिएंसी, एंड स्कूटर का भी ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है, मतलब अगर जैसे कि मैंने बताया अभी इसका मारुति का स्कूटर का पोर्टफोलियो काफी कम है, तो लोग स्कूटर में ही इम्प्रूव कर रहे हैं, और मारुति अपना हीरो नया, हीरो हीरो हीरो। हाँ हाँ हीरो, सॉरी हीरो, हाँ। हम्म, हीरो अपना नया शायद बाइक भी लॉन्च किया है अपना, मतलब जो उसका बाइक स्कूटर जो मेन बिक रहा है, डेस्टिनी हाँ। एंड एक्स बूम, तो सब स्कूटर के बारे में ही चर्चा हो रहा था चारों तरफ। ओके। सो और Sir, I would like to add, like, if the scooter we are saying, तो Ather we should not like avoid like EV में, because वो प्रीमियम स्कूटर्स में ज्यादा है, like उसका सेगमेंट 1.25 से शुरू होता है और काफी अच्छा सेल्स दिखा है, तो Ather नंबर should also be included in coming future. हाँ हम्म। वो इथर इज अ परसों पार्ट का ऑफ हीरो ओनली ना, हीरो का ही पार्ट है ना वो? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं इट इज अलग है सर इंडिविजुअल, वो। नहीं अलग है मतलब सर वो। पार्ट एज एन हीरो एज एन स्टेक इन एथर ना, ऐसा? हाँ 30-40% का स्टेक है सर हीरो का हाँ। इधर में। सर इसका भी मतलब ग्रोथ बहुत हाई हुआ है बेंगलुरु में इसका, मतलब नए स्टोर्स भी बहुत अभी ओपन हुए हैं। परसों का ही न्यूज़ था, मैंने आपको एक शायद आई थिंक भेजा था इसका हाँ, न्यूज़लेटर, मैंने पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा कि एथर भी है जो मतलब मार्केट को भी कैप्चर कर रहा है, मतलब और कंपटीशन दे रहा है स्पेसिफिकली इन ईवी में। करेक्ट करेक्ट। आज उसका कॉन कॉल रिजल्ट दोनों है सर, तो लेट्स सी हाउ इसका दे डिलीवर। हीरो का है? एथर, एथर ये का, सर। एथर। अच्छा, if I look at the hero chart ना, तो हीरो का चार्ट थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहा है, बट इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अगर 2 व्हीलर्स ग्रो हो रहा है, तो 2 व्हीलर्स में वी कैन नॉट मिस ऑन द नेम टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स। वो टीवीएस मोटर्स इज जस्ट, मतलब बढ़ ही रहा है वो, क्योंकि कैश द डिमांड इज कमिंग, टीवीएस मोटर्स का बेसिकली काफी हाई डिमांड है उसके स्कूटर्स का। एंड देखो यहाँ पे कॉन्स में से भी आता है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब रादर देन दिस कंपनी में कोई प्रोज कॉन्स ही नहीं है कि उसका इतना हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। सो टीवीएस इज अ गुड टू वॉच आउट। ओके, हीरो का क्या प्रॉब्लम है? हीरो के तुम बोलोगे ना सिद्धांत, इवन एफ द एज एन इन्वेस्टमेंट रैशनल, हीरो का एज यू सेड 90-10% स्कूटर से आता है, तो बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा, ऐसा है। तो मे बी नॉट नाउ, 5 years डाउन द लाइन तुम स्कूटर्स की बात करना हीरो पे। अभी अगर तुम स्कूटर्स की बात करो तो यू कैन नॉट मिस आउट ऑन टीवीएस, बिकॉज टीवीएस का मेजर पोर्टफोलियो है स्कूटर्स, Sir, I बाइक्स was हार्डली है। there in con call of TVS. They were like mostly focused on iQube and three-wheeler sir segment in हाँ, electric. They were like more optimistic about that. And करेक्ट। export में भी Norton करके कंपनी है, which they have नॉर्टन पता है, I think, हाँ यूरोप Norton, में, तो हाँ, हाई यूरोप बेस्ड, प्रीमियम में उसको लॉन्च कर रहे हैं लोग Norton। अच्छा यूरोप बेस्ड कंपनी, हाँ। तो ये FTA डील भी शायद से इट विल इम्पैक्ट टीवीएस, शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि No, वो no, sir. यूरोप। It is because Modi and this UK president also, they have like shaken hand in front of Norton scooter only. They have हाँ क्या? launched one event of अच्छा, that. हाँ, अच्छा ये पता नहीं था। ओके। नहीं वो न्यूज में था सर, क्योंकि वो कॉन कॉल पे था तो काफी कुछ समझ में आया, तो फिर वो ट्रैक कर रहा था तो देखा मैं वो लोग उसका लॉन्च किए थे, लाइक नॉर्टन एंड टीवीएस ने लॉन्च किया, मोदी जी एंड दिस यूके सम पर्सन वाज देयर, सो उनके साथ ही वो लोग लॉन्च किए साथ। ओके। ओके, ग्रेट। ग्रेट, गुड वन सिद्धांत, गुड गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू आई सर। लाइक इट। थोड़े बहुत ठीक है, कॉस्मेटिक चेंजेस है वो फाइन है, वो जीरो में नहीं डालना है, जीरो नहीं डालना है। यस सर। अगर छोटा नंबर है ना, ऑलवेज इफ इट्स सिंगल डिजिट तो हमेशा एक डेसिमल डालना, ऐसा है। ओके। क्योंकि ना वो 2 और 5 में बहुत फर्क है, कि वो राउंड ऑफ हो जाता है ना। एक डेसिमल होगा तो हमें, सॉरी, एक ही अगर नंबर होगा तो ऑलमोस्ट पुट 1 डेसिमल, 2 नंबर होगा तो जरूरत नहीं है।
हाँ सर, मैं अभी नोटिस किया मतलब कि टीवीएस का स्कूटर ऑलमोस्ट 41% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ज्यादा कि होंडा का स्कूटर सिर्फ 9% बढ़ा है हाँ, होंडा बड़ा ईयर हो ऑन गया ईयर। काफी। टीवीएस इज हाँ। स्टिल स्मॉलर प्लेयर कंपेयर टू होंडा। नो सर, टीवीएस भी सर काफी मतलब इस बार ऑलमोस्ट 2 लाख 2 लाख वॉल्यूम था बेचा सर है, हाँ। स्कूटर हुआ टीवीएस का। अच्छा, टू और लाख हो होंडा गया का है। 2.5 था सर होंडा का। अच्छा। सर ऑलमोस्ट एक नियर चीज आ गया। पूछना था कि चार्ट का जो पैटर्न है, तो हाँ, चार्ट जब डिफरेंस आ रहा है तो उसमें भी परसेंटेज डाल देंगे तो इसे चार्ट देखने में इजी पड़ेगा इजी बाद में, पड़ता है, हाँ, मतलब। वो लाइन डालते हाँ, हैं ना, हाँ। लाइन डाल के डिफरेंस तो वो इजी होता है। वैसे बार में सेकंड लाइन मेरे को टेबल देखने की जरूरत नहीं है, मैं चार्ट से ही समझ जाऊँ कितना डिफरेंस हुआ है। डिफरेंस है। हाँ, तो हाँ। ये यूजुअली चार्ट कब आता है? जब 3-4 नंबर हो तभी। अभी 2 ही चार्ट है तो समझता है कि इतना ग्रोथ हुआ है, ठीक है, हाँ, मतलब। पर सर परसेंटेज में समझना इजी, मतलब वो चीज भी बस वो बोल फिर रहा ज्यादा हो जाता है चार्ट में, इसके लिए मैंने वो था। नहीं रखा है इसमें। ओके, रख सकते तुम, ओके। क्योंकि इसमें चार्ट हाँ, ज्यादा हाँ। 3 ही चार्ट है ना। ज्यादा चार होते तो समझ हम्म, आता कि ग्रोथ हो रहा है। वो वरना क्या होगा, ये ऐसा करके ऐसा होगा। हमको और हम सर हमेशा ईयर ऑन परसेंटेज ईयर डिफरेंस देखते हैं। दिख जाता है ना, इसलिए मैं बोला, बस पूछ रहा था मैं, वो बस पूछ रहा था नहीं, आपसे कि हाँ, डालना नहीं, नहीं, चाहिए कि नहीं। हाँ, नहीं, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम ईयर ऑन ओके। ईयर बात करते हैं इसमें। हम हम्म। मंथली नहीं डालते हैं। जून और ओके। जुलाई का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, कंपेरिजन ही दैट्स नहीं व्हाई है नो। कुछ। हाँ। कुछ कंपेरिजन ही नहीं है। तो इसके लिए हम ये ओके, दो ओके। एक्चुअली डालते दो ही है, ये सिर्फ एक समझने के लिए कि जुलाई जून में क्या हुआ है, बस। श्योर, श्योर, ओके। इसके लिए वो यहाँ पे वो लाइन नहीं डालता है। ओके। अंडरस्टूड। ओके। अच्छा, टीवीएस ने भी इतना, मतलब 250 हो गया इसका भी, टीवीएस का भी यस वो। सर। मैं अभी नोटिस किया, रिपोर्ट लिखते समय मैं ध्यान नहीं दिया, पता नहीं छूट गया मेरा। ये ना, मतलब। मेरे ख्याल से होंडा हम्म। के पास ना कोई भी इलेक्ट्रिक है नहीं उनका अभी। अभी निकाला उन्होंने एक्टिवा। हम्म। टीवीएस ने इलेक्ट्रिक हैज डन गुड, मतलब iQube हैज डन फैबुलस। बाकी हम्म। तो कर ही रहे। हम्म। टू व्हीलर्स भी कर रहे हैं उसमें, काफी दिखते हैं, मतलब इवन इन पुणे इफ आई सी, काफी iQubes दिखते हैं। iQube एंड चेतक हैज बीन लाइक रिवर्स, हाँ, बहुत ज्यादा दिख रहा चेतक भी है, है, करेक्ट। ऐड टू टीम है। हाँ, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव डीलरशिप। एथर है तो मेरे बैंगलोर में मैं बोलूंगा तो एथर ही बस दिख रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन हियर। हाँ, हीरो के भी दिखने लग गए अभी अचानक। आई हैव सीन 2-3 स्टोर्स इन पुणे के, नहीं दिखने के, अभी काफी ज्यादा दिखने लग गए स्टोर्स। बट ठीक है, सर। हीरो इज स्मॉलर प्लेयर तो फिर डजंट मेक सेंस टॉकिंग ऑन द फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट। सर, ओला जिस पेस से स्टार्ट किया था अपना टू व्हीलर सेगमेंट ईवी में, अगर वो हाँ, पेस और क्वालिटी मेंटेन रखता अभी अच्छा ग्रोथ पहुंच जाता उसका। बट अपना वो अच्छा रखा नहीं, क्वालिटी एंड सर्विस, उसके कारण एथर उसका, एथर और टीवीएस का मार्केट कैप्चर करके लिया हाँ। पूरा। ओला वाज अ, ऐसा तो एक्सपेक्ट किया है। ओला के काफी सारे नेगेटिव बैड रिव्यूज भी आए ना। हाँ सर, बहुत सारा सर। बहुत सारे ओला में आए। सर मैं था ना खाली नेगेटिव ही सुनता था, पॉजिटिव कहीं से हाँ, नहीं सुना। वो ये हो गया, ऐसा हो गया पता नहीं हम्म। वो। मेरे भाई ने भी बुक किए थे, फिर आई नहीं गाड़ी। ये हो गया फिर। पीपल इंडियंस आर लाइक, अरे यार ऑनलाइन कौन स्कूटर लेता है, तुमको तो स्टोर में जाके देखना चाहिए कैसा है क्या है। तो उसके स्टोर्स भी अवेलेबल नहीं है ज्यादा। हम्म। बाकी सबके रिच तो है ना, बाकी सब जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, अभी जैसे टीवीएस हीरो, वो लोग तो ऑलरेडी हम्म। शोरूम्स है उधर, सिर्फ उनको जाके एक रखनी है उनकी स्कूटी। उनको थोड़ी अलग से And शोरूम खोलना है। and so they are selling through e-commerce also, like Bajaj, TVS, and Hero. You can order from Flipkart also, so they are selling online also. हाँ, नहीं, वो लोग देखने तो मिल रहा है ना, ऐसा है कि तुमको एटलीस्ट यू कैन हाँ। एबल टू सी। ओला के तो दिखने भी नहीं थे कि दिखती कैसे है गाड़ी। तो वही जो ओला का मैक्सिमम बैंगलोर में तो जो दिखता था। उसके हम्म। अलावा मैं कहीं भी नहीं सुना कि ओला का उतना बाइक्स है। मैं गुड़गांव तरफ भी गया था, उधर भी उतना ओला का नहीं था बाइक्स। स्टार्टअप यहीं से था इसलिए। फाइन, 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 गुड, गुड वन सिद्धार्थ। थैंक यू सर। प्रफुल्ल, तुमको कुछ बोलना है मारुति के ऊपर? प्रफुल्ल, हाँ, प्रफुल्ल, cannot hear you, प्रफुल्ल। Okay. गौरव, anything on D2C? गौरव, गौरव is not here, sorry. Okay, guys, I think we'll wrap up for today. Good presentation. So what we can see is, two wheeler is growing. अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो obviously premiumization is happening. Honda has regained its second number 2 spot. Maruti is flat, but Maruti का exports बढ़ रहा है.
Obviously Maruti ka export is only 10% of its overall revenue, so it will not impact that much on the financial part. But अगर तुम TVS की बात करो, टू व्हीलर्स की बात करो, TVS is the best player in that. Hero is growing in it. Bajaj का थ्री व्हीलर Bajaj is doing everything. Premium में भी है, scooters में भी है. तो Bajaj is like, I will say, a leader in all this. See, abhi now, if I talk about auto sector, Bajaj is the leader, not Hero. रीजन, बजाज के पास मोटरसाइकिल्स भी है, बजाज के पास मतलब हाई एंड वाले भी है, स्मॉल एंड मास वाले भी है, उनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी है, उनके पास रिक्शास भी है. सो प्रोबेबली ये टू थ्री व्हीलर्स का पूरा सेगमेंट इज कवर्ड बाय बजाज. मतलब प्रीमियम भी आ गए, मास भी आ गए, स्कूटर्स भी आ गए और थ्री व्हीलर्स भी आ गए. हीरो के टीवीएस के पास इज ओनली मेजरली इज इनटू योर two wheelers or two wheelers EV, and three wheelers में they are growing. I mean, the Hero का the problem is Hero is specifically only in motorcycles. तो अभी उसमें थोड़ा कंसर्न है कि ये मोटरसाइकिल्स ग्रो हुआ तो, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है हीरो. TVS is on the part of becoming the second largest player in scooters. 250 है, इसका 2 लाख है, मतलब सिर्फ 50,000 यूनिट्स ही ज्यादा बिकने हैं TVS को. तो probably in the next few years it might overtake Honda if Honda doesn't ramp up its production. अच्छा, FMCG में बात की तो FMCG में probably it is your Tata Consumers. I look a preferred brand. हाँ, बाकी भी है, मैरिको है, देर इज मैरिको, देर इज HUL तो देखना ही है बिकॉज HUL इज द मार्केट लीडर. बट मैरिको एंड तुम्हारा टाटा कंज्यूमर्स इज मच स्मॉलर कंपेयर टू मैरिको. बट हाँ, मार्केट प्राइस, अच्छा, आई हैव नॉट सीन. अच्छा, ये याद रखना कि जब बोलते हैं स्मॉलर एंड बिगर, तो इंटरव्यू में काफी बार पूछते हैं कि व्हाट इज द मार्केट कैप. टाटा कंज्यूमर्स का मार्केट कैप इज 1,05,000, वेर एज मैरिको का इज 92,000. ठीक है, टाटा कंज्यूमर ही बड़ा है. दो मैरिको एज अ लीडर इन पैराशूट, इसका मतलब ये नहीं कि मैरिको टाटा कंज्यूमर से बड़ा है. तो टाटा कंज्यूमर इज अभी इफ यू सी द प्रॉफिट मार्जिन ना, अभी देखो इसका पैट कितना है. सर इफ आई टॉक अबाउट द पी रेशो, 57 है. टाटा कंज्यूमर्स का इफ आई टॉक अबाउट द पी रेशो 80 है. तो थोड़ा बहुत कंसर्निंग साइन है कि इतना हाई क्यों मिलता है इसको. इसके सेल्स 18,000 करोड़ है, मैरिको के सेल्स, ये सब पता होना चाहिए बेसिक नंबर्स कितने हैं, एटलीस्ट द फाइनल वन. मैरिको के सेल्स 10,000 ही है, बट मैरिको का प्रॉफिट 1,600 करोड़ है, टाटा कंज्यूमर का प्रॉफिट 1,200 करोड़ है. हाँ सिद्धांत बोलो. सर मैं बोल रहा था जैसे कि वी यूज टू टेक द ओवरऑल सेगमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर वाइल वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि मतलब उसका पूरा सेगमेंट ग्रो कर रहा है, टोटल पूरा वॉल्यूम मिला देंगे फोर व्हीलर का, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि इसका वॉल्यूम इतना से पूरा सेगमेंट इंप्रूव कर रहा है, तो हाई चांस कि इसका स्कूटर सेगमेंट भी ग्रो करेगा ग्रो होगा, वो पर्टिकुलर करेक्ट. कंपनी का. तो करेक्ट. वैसे ही सर FMCG में अगर हम लोग सपोज TCPL का टी सेगमेंट का एग्जांपल ले, तो उसमें हम लोग अगर फोरकास्ट करें तो उसका सेगमेंट हम लोग तो कैसे देखेंगे, उसका टोटल सेल्स तो शायद नहीं देखेंगे, मतलब कैसे नहीं, देखेंगे कि उसका फिर टी का इंडस्ट्री, हाउ मच टी इंडस्ट्री इज गोइंग ऑन, कॉफी में क्या हो रहा है. ओके, तो वो हम इस लोग को जनरली उसका जो इंडस्ट्री रिपोर्ट टाइप का ही मिलेगा, तो वो पढ़ के न्यूज़पेपर पढ़ के हम लोग को वहाँ दिखेगा कि इंडस्ट्री कितना से बढ़ रहा है. इंडिया से कितना से बढ़ रहा है. हाँ, तो वो एक ओके. अजम्पशन लेके वी कैन टॉक अबाउट इट्स फोरकास्टिंग. एक बेसिक अजम्पशन कि सर अगर ये 10% से ग्रो हो रहा है इंडस्ट्री, तो टाटा टी भी 10% से ग्रो हो सकता है. ओके. तो इसके तीन तीन अलग अलग है ना. एक तुम्हारा टाटा बेवरेजेस है, एक हम्म. तुम्हारे, तो बेवरेजेस में भी टी अलग है, टी और कॉफी अलग. टी और ऐसा कॉफी अलग है. है. तो टी 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 कितना कॉफी परसेंट रेडी आता है. टू हाँ, ड्रिंक. तो थोड़ा ढूंढना पड़ता है टी कितना परसेंट है, कॉफी कितना परसेंट, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा. ओके. बट ओके. नहीं तो टी एंड कॉफी का एक ब्लेंडेड रेट ले सकते हो अगर नहीं मिलता है तो. ओके. बट तो तुम ब्लेंडेड FMCG को रेट, कंपेयर ही नहीं हाँ कर हाँ. सकते कि टाटा कंज्यूमर FMCG ग्रो हो रहा है इसके लिए टाटा कंज्यूमर्स ग्रो हो रहा है. दैट इज वेरी, नहीं नहीं वो, इट्स रॉन्ग. हाँ, तो ओके सर. ओके. हाँ संचित कुछ बोला ना. सर, हाँ. सर मेरे को वो जो फर्स्ट सेशन था ना मार्केट ट्रैकर वाला, उसमें सिर्फ डाउट, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी फाइल अपना शेयर किया था. हाँ बोलो ना, क्या था डाउट, सॉरी मैं मिस हुआ होगा. सर वो क्या था. मार्केट ट्रैकर से रिलेटेड था.
some indices are not available in the भाव कॉपी। क्यों नहीं आ रहा indices? वो उससे कुछ का नहीं आ रहा है, सबका जैसे आपने बोला था ना कि मैंने आपका एक सेकंड वीडियो देखा, तो उसमें आपने बोला था, किसी ने डाउट पूछा था कि सर उसका इंडेक्सेस नहीं मिल रहा, तो आपने बोला था उसमें मिल जाएगा। मैंने हाँ, उसको लिंक किया था, लेकिन उसमें उनका नहीं आ रहा, जो मेरा एन जा रहा है। एक सेकंड में खुलता तुम्हारा तो मैं फोन। वही पूछा था, उसको मैनुअली करना पड़ेगा या फिर? नहीं नहीं नहीं, मैन्युअली नहीं करना है। एक सेकंड, मैंने तो किया तो फिर वो टाइम पास हो जाएगा ना, बोर हो जाएगा। हम्म। और मैं तो फाइंड करके भी देखा, तो वो वाला इंडेक्सेस है ही नहीं उसमें, जो फाइनेंशियल सर्विस था। ये तो है ना इंडेक्सेस, ये क्या? इससे सारे नहीं है जो एफएम, नहीं तो जैसे सारे नहीं करने मेरा ना फर्स्ट हमको। कौन सा तुम्हारा एन आ रहा है इंडेक्सेस है? सिर्फ इंडेक्सेस वाले, ये वाले हाँ, ही। तो कैसा है ना, इसमें ना वो तुम्हारा नाम अलग है। ये जो है ना फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये भाव कॉपी में ना उनका नाम अलग है। ये ऐसा लिखा है फाइनेंशियल सर्विसेज 50, देख रहे हो? तो यहाँ पे पेश करोगे ना। लास्ट वाले 31 हाँ, पे है। किधर है? ये 31 आ जुलाई गया ना, ये रहा, ये आ गया तो। ना। वो नाम अलग है, अच्छा, ओके ओके। वो नाम अलग है। तो ऐसे नहीं डालने हैं। अभी जो भी तुम्हारा नहीं आ रहा है ना, वो शायद से ना प्राइवेट बैंक लिखा नहीं होगा उसमें, कुछ अलग लिखा होगा। पीवीटी बैंक करके लिखा होगा सर कुछ। क्या लिखा है? पीवीटी, प्राइवेट को पीवीटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। अच्छा, हाँ ये रहा या पीबी, पीवीटी। ऐसा लिखा है। तो वो जब तुम पेश करोगे ना तो आ जाएगा यहाँ पे, देखो आ गया। यस सर। ठीक है, तो ऐसा है, सिर्फ वो नाम वो उसने लिखा नहीं है, भाव कॉपी में अलग नाम रहता है, क्योंकि हम इंडेक्स मैथ लगा रहे हैं तो उनको वो एग्जैक्ट चाहिए होता है। थोड़ा सा भी स्पेस का भी फर्क होना तो भी नहीं आएगा वो। हाँ सर। ऐसा है, ठीक है। और सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे नेक्स्ट ईयर में अपडेट करूंगा, तो हाँ, सर इसका जैसे अगर नेक्स्ट अगर 31 जुलाई का है तो फर्स्ट अगस्त जाएगा, तो फर्स्ट आ सर इसमें जाएगा, फिर हाँ। लास्ट लास्ट वाले डिलीट करते जाना है या फिर उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाना है? नहीं, इसमें डालोगे ना तुम, तो क्या होगा, ये जो होता है ना, ये क्या करना है हमको, ये कॉपी करके जो भी है, पेस्ट करना है। ये पहले एक फॉर्मूला डाल दो यहाँ पे। यस ठीक सर। है, ये होगा क्लोजिंग प्राइस, वो तो सब सेम ही होगा। तुम्हारा ये 1 अगस्त आ गया, ठीक है। अभी ये जो है ना यहाँ पे, इसको क्या करोगे, कॉपी करके वैल्यूज वैल्यू में कर कर देना, दूंगा। वैल्यूज कर दो, हाँ। Yes। फिर जब यहाँ पे सिर्फ तुमको पेस्ट ही करना है भाव कॉपी, वो अपने आप सब आ जाएगा। हाँ हाँ। तो ओ हर एक ओ बार तुमको अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। ओ ओके। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी करोगे तो मेक श्योर कि ये तुम फॉर्मेट पेज स्पेशल कर देना, फिर तुम यहाँ पे डालो। ठीक है, तो वो अपने आप से भी कुछ करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, वो सब आ जाएगा। जब भी डालोगे यहाँ पे सब नए नंबर, सिर्फ भाव कॉपी लेनी है, तो इसके लिए वो इजी हो जाता है ना, तुमको सिर्फ 2-10 सेकंड में ही लगेगा सब डाउनलोड करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तुमको सब अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। चेंज क्या है, यस सर। और यहाँ पे है 1 डे चेंज है, तो यहाँ पे मैंने बोला था 1 डे चेंज है, इसको वैसे ही वैसे का वैसा कॉपी करके पेस्ट कर देना, नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा। फिर ये हाइड कर देना, ये वाला है जो हाइड करना है, ओके। डिलीट करना चलेगा, जो भी है तुमको, सिर्फ यहाँ पे लिंक करना है इस साइड। वीकली है तो वीकली भी कॉपी अपने आप वो नेक्स्ट वीक का आ जाएगा, समझे? ओके। ओके। या हर्षल? सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जो जैसे सिद्धांत का रिपोर्ट बहुत अच्छा बना था, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक चीज था जहाँ पे हमें दिख रहा था कि एसयूवी सेल्स में डिक्लाइन है बट ईवी गेन है। इसका एक हाँ, रीजन ये भी हो सकता है ना कि मोस्टली जो ईवी मॉडल्स हैं वो एसयूवी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर हम ईवी और आइस को सेपरेट कर देंगे तो वो सारे सेल्स जो ग्रोथ है वो एसयूवी की जगह ईवी में जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाए जहाँ पे हम आइस और ईवी को सेग्रीगेट करें। नहीं इतना डेटा नहीं मिलता ना बेसिकली, अभी ईवीज में एग्जैक्टली एसयूवीज कितने बिके, हैचबैक कितने बिके, वो डेटा नहीं है। ओके। ऐसा है, तो एसयूवी जो भी हम बोल रहे हैं ना, एसयूवी हैचबैक, इट इज अज्यूम टू बी आइस। ईवीज स्पेसिफिकली मतलब सब मिला के ईवीज की बात की है, ऐसा है। ईवी में स्पेसिफिकली एसयूवीज और हैचबैक, क्योंकि है ही नहीं वैसे, ईवी में सब एसयूवीज ही है, बट फिर भी वो सेग्रीगेट नहीं किया डेटा कि 100 ओके, ईवी तो मे है। बी उसकी वजह से जो हमें एसयूवी में डिक्लाइन दिख रहा है, क्योंकि मोस्टली वो सेल्स ईवी में ट्रांसफर हो गए। वो तो हो ही रहा ना, कैनिबलाइजेशन तो पूरे इंडस्ट्री में हो रहा है ना। ओके। अरे तुमको अगर बस वही हम जो डिस्कस कर रहे थे ओवर द पीरियड, कि आइस इंजन एंड एसयूवी, इट विल नेवर हैपन
कि तुम्हारी पहली गाड़ी इज एन ईवी, इट्स बिकॉज ईवी इज नॉट कंसिडर टू बी प्रैक्टिकल इन इंडिया अभी तक। तुम्हारी फर्स्ट गाड़ी कभी ईवी ले ही नहीं सकते, इट विल ऑलवेज बी अ सेकंड कार। सर मैं अग्री करता हूँ, मैं हाँ, उस क्योंकि बात से तुम जा ही नहीं कंप्लीट। सकते ना बाहर, तुम ईवी तो सिटी में चलाने के लिए यूज है ना, तुम बाहर जा ही नहीं सकते ईवी लेके, राइट सर। कैनॉट डू दैट। ईवी सर, मतलब थ्री व्हीलर में मैंने सबसे ज्यादा देखे ऑनेस्टली, फोर व्हीलर और टू व्हीलर में ईवीज का पेनिट्रेशन अभी कम है कंपैरेटिवली। इट विल ओनली बी और फ्लीट तीन, सेगमेंट। सी, ईवी मुझे लेना है, मैं क्यों लूंगा ईवी? मैं थोड़ी मुंबई पुणे आने के लिए ईवी लूंगा, मैं तो वो बट पुणे के पुणे में घूमने के लिए लूंगा। और फिर इतना पैसा मेरे पास है कि ना कि आई कैन अफोर्ड टू कार्स, तो बात अलग है। तो वो ईवी इज अ लग्जरी आइटम है अभी तक तो इंडिया में। इट इज नॉट अ थिंग दैट पीपल गो एंड बाय ईवी। वो बस मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए और मुझे सिटी में ही चलानी है तो मैं ईवी लेता हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन माई कैपेसिटी कि मैं 20 लाख की लूँ, 10 लाख की लूँ या 50 लाख की लूँ। ओके सर, एक चीज और पूछ रहा था, एफएमसीजी में आपने आईटीसी की कोई बात नहीं करी, लाइक आईटीसी मुझे। हैज जस्ट डीमर्ज ना, उसके डेटा है ओके। नहीं इतना, इसका कुछ डेटा है नहीं उसके बारे में। ओके सर, मैंने एक्चुअली ट्रैक नहीं किया इसलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, मैं आईटीसी एक का बार। डेटा ही नहीं है ज्यादा, मतलब हिस्टोरिकल नंबर्स ही नहीं है उसके। अभी ओके। डीमर्ज हुआ ना वो, और पहले उसके नंबर्स नहीं आने के क्योंकि वो पहले सब मिक्स ही आने का, ऐसा है। सर, हम लोग एफएमसीजी की बात करते हैं सेल्स की, तो हम ये नहीं बात करेंगे कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में कितनी सेल्स कर रहे हैं, है ना, क्योंकि नेस्ले, पीएनजी नेस्ले है ना। पीएनजी बहुत बड़ी कंपनी है जिसका इंडिया में भी पेनिट्रेशन अच्छा खासा है। पर पीएनजी का कॉम्पिटिटर कौन है? इंडियन कंपनी। एचयूएल ही है वैसे तो इंडिया में। एचयूएल तो बहुत कुछ बिकता है, वो सबका ही कॉम्पिटिटर है हाँ ना। सर, वो नेस्कैफे, तो इफ आई टॉक अबाउट नेस्कैफे एंड टाटा कंज्यूमर्स आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स, मतलब राइट। दोनों के पोर्टफोलियो टी कॉफी से मिल जुलते हैं। रेडी टू ड्रिंक्स भी है, वेराज एचयूएल का वैसा नहीं है। एचयूएल ने टी और कॉफी, काफी टी तो बनाता है, कॉफी तो बनाता ही नहीं है एचयूएल, काफी कम है मतलब ओवर द। सर नेस्ले ने लॉन्च किया है नेस्प्रेसो करके कैफे भी, लाइक फॉर स्टारबक्स हाँ हाँ कंपटीशन, हाँ, सो दे आर रिवलरिंग टू क्लोज नाउ। करेक्ट करेक्ट, हाँ वो बहुत क्लोज है नेस्ले। और बोला ना, आज वही बोल रहा ना, वाइफ को बोल रहा था कि उसने नेस्कैफे का प्राइस बढ़ गया, हमने टाटा का ले ले, नेस्कैफे मत ले। तो बोला मुझे टाटा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वो तो पर्सनल चॉइस होता है, बट दे आर वेरी क्लोज कॉम्पिटिटर्स, करेक्ट। सर, हम टाटा का जब एफएमसीजी की बात करते हैं तो हम उसके स्टारबक्स आउटलेट्स के थ्रू सेल्स भी कंसिडर करते हैं क्या? स्टारबक्स वो लोग अलग से देते हैं, स्टारबक्स में अलग से कितना सेल हुआ है ओके। वो इंटर इंटर सेगमेंट नहीं करते हम कि टाटा क्योंकि ने। स्टारबक्स लाइक खुद का ब्रांडेड बहुत कुछ बेचता भी है, लाइक हाँ मतलब रेडी टू ड्रिंक तो देता ही है आपको, बट उसके अलावा वो रॉ मटेरियल्स भी बेचते हैं स्टोर में, करेक्ट, हाँ। इसलिए पूछ रहा था मैं। टाटा का उसका अलग से आता है स्टारबक्स का, ऐसा है। ओके। Okay. या प्रफुल, हाँ प्रफुल बोलो अभी। प्रफुल कैन नॉट हियर यू। सर मैं आसिफ। हाँ सिर्फ बोलो। हम्म। हाँ सर, मेरा वो डाउट इंग्लिश सेशंस के लिए था। ये अभी जो अब ये 1 वीक जो है वो 5 डे प्रिपरेशन वाला फिर से वो स्टार्ट हुआ फिर है। से, हाँ। हाँ, तो मेरा डाउट ये है कि लाइक फिर से वो जो आफ्टर 5 डे वाला जो शुरू हुआ था, तो फिर से वो स्टार्ट होने वाला है या लाइक आफ्टर दिस 5 डे सेशन? यस, हाँ, अगेन इट विल स्टार्ट, या 20 days। हाँ ठीक है, वही हाँ मैं अटेंड नहीं किया था लास्ट मंथ, मतलब क्लियर कंसिस्टेंटली। हाँ, कर ले रहा हूँ अभी। ओके। ओके। 7 to 8 अच्छा, days। और एक डाउट ये है सर, ये जो न्यूज़ लेटर्स वगैरह में है, तो हम्म। मतलब अब मैं लाइक स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से, तो आप मतलब बोले कि प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में तुम जानना, पूरी कंपनी कैसी है, जो उसके हाँ बाद में वो न्यूज़ लेटर भी लिखना। तो लाइक मैं अभी न्यूज़ लेटर होल्ड करके पहले वो जो एफएमसीजी का कंपनी उनके बारे में स्टडी करूंगा एंड ऑटोमोबाइल के बारे में स्टडी करूंगा, उसके बाद न्यूज़ लेटर स्टार्ट करूँ या लाइक? नहीं नहीं, न्यूज लेटर तो न्यूज है ना, वो तो क्या है, रोज अलग आएंगे ना। हाँ तो वो तो लिखना ही है ना बेसिक, कि तुमने आज क्या पढ़ा। मैं सिर्फ पेपर तो रोज पढ़ना है, तो मैं तुमको पूछूं मोहम्मद आज क्या पढ़ा तुमने, हाँ। तो सर ये पढ़ा मैंने, ऐसे। अच्छा अच्छा। वो तो पर ये तो साइड बाय साइड है कि वो तो डिटेल हो गया ना, कि कंपनी के बारे में डिटेल, उसको तो टाइम लगेगा, वो इतना जल्दी नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ओके। जितना न्यूज पे। पढ़ा वही। हाँ, न्यूज आर्टिकल तो रोज क्या पढ़ा तुमने आज, किसके ठीक। बारे में पढ़ा। ओके। ठीक है। गुड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। और सर, न्यूज़पेपर में आप कौन सा सजेस्ट करेंगे सबसे, मतलब ज्यादा जिसमें भी है, बिजनेस न्यूज़ मिल सके? सभी आते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक टाइम्स। इट्स ओवरऑल मेरे तो सब खुले हैं यहाँ पे टैब्स, इफ यू सी।
ऑल माई टैब्स आर ओपन. वो डिपेंड मुझे क्या पढ़ रहा है. कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, बिजनेस लाइन हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स भी होता है. तो सर मैं अभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा हूँ, बट उसमें ये होता है कि लाइक बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. मतलब हाँ, बिजनेस न्यूज उसमें 50% से भी कम होता है. करेक्ट करेक्ट. तो उस हिसाब से पूछ रहा था मैं आपसे. नहीं, एवरीथिंग, वी रीड एवरीथिंग जो भी है. आई यूज्ड टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिन में. ठीक है सर. Okay. Okay, guys, so we'll wrap up today. I have a call to take. Okay. Thank you, guys. Thank you. Good session today. See you tomorrow. Bye bye. Thank you, sir. Um, Thank you, sir. Thank you, sir.